اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے 9 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک قسم تو ایسی آیات کی ہے جو محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں۔ دوسری قسم متشابہات کی ہے، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی تعویلیں نکالیں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقائق وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل و بصیرت والے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کہے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین، محکمات سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ محکم کا مادہ حکم ہے، جس کے معنی کسی چیز کو ایک مقام پر روک دینے کے ہیں، اور جو چیز ایک مقام پر جم کر کھڑی ہو جائے وہ مستحکم کہلاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو حکیم کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا صحیح مقام متعین کر کے کسی کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تمام اخلاقی امور میں صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حکیم کہا گیا ہے کیونکہ وہ کائنات کو ٹھیک ٹھیک راستے پر چلاتا ہے، ہر شے کو صحیح اندازے اور تناسب کے مطابق پیدا کرتا ہے اور اپنے قانون کی لگام سے ہر شے کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ناظرین، محکم کے معنی ہیں اپنی جگہ پر قائم یعنی اٹل، صاف فیصلہ کرنے والا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالحکم ما لا یعرض فیہ شبہۃ من حیث اللفظ ولا من حیث المعنی۔ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے، اس پر کسی قسم کا شبہ
वारिद ना हो सकता हो। चुनाचे मुहकमात के मानी होंगे ऐसी आयात जिनके अल्फाज से वही मफहूम वारिद हो जो इन अल्फाज के मानी हैं। वो आयात जिनका हुक्म बिल्कुल वाज़े और साफ है, जिसे हर शख्स आसानी से समझ सकता है, इन्हें मुहकमात कहते हैं। नाज़रीन, लुगातुल कुरान में ये भी आया है कि उम्मुन के मानी माँ के हैं, जैसा कि पारा नंबर 4 सूरत उन्निसा आयत नंबर 23 में इरशाद है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम हैं। लेकिन सूरह आले इमरान की इस आयत में उम्मुन के मानी इस किस्म की माँ के नहीं, इसमें उम्मुन लफ्ज़ इस्तारतन इस्तेमाल हुआ है और इससे मफहूम असल या बुनियाद है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहकम पक्की और पुख्ता चीज़ को कहते हैं। आयात मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी ज़बान बिल्कुल साफ़ है, जिनका मफहूम मुतय्यन करने में किसी को इश्तिबाह की गुंजाइश नहीं है, जिनके अल्फाज मानी और मुद्दा पर साफ और सरीह दलालत करते हैं, जिन्हें तावीलात का तख्ता मश्क बनाने का मौका मुश्किल ही से किसी को मिलता है। ये आयात किताब की असल बुनियाद हैं, यानी कुरान जिस गर्ज के लिए नाज़िल हुआ है उस गर्ज को यही आयात पूरा करती हैं। इन्हीं में इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, उन्हीं में इबरत और नसीहत की बातें फरमाई गई हैं, उन्हीं में गुमराहियों की तरदीद और राह रास्त की तौज़ी की गई है, उन्हीं में दीन के बुनियादी असूल बयान किए गए हैं, उन्हीं में अक़ायद, इबादत, अखलाक, फ़राइज़ और अम्र नही के अहकाम इरशाद हुए हैं। बस जो शख्स तालिब हक हो और ये जानने के लिए कुरान की तरफ रुजू करना चाहता हो कि वो किस राह पर चले और किस पर न चले, उसकी प्यास बुझाने के लिए आयात मुहकमात ही असल मुरज्जा है और फितरतन उन्हीं पर उसकी तवज्जो मरकूज़ होगी और वो ज़्यादातर उन्हीं से फ़ायदा उठाने में मशगूल रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुहकमात वो आयात हैं जो नासिख हों और जिनमें हलाल व हराम और अम्र व नवाही के अहकाम हों। और आपसे ये भी मरवी है कि कुल तालौ अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन, ये पारा नंबर 8 सूरतुल अनाम आयत नंबर 151 है। और इसके बाद वाली आयत, इसके अलावा पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और इसके बाद वाली 3 आयत मुहकमात हैं। अबू फाख्ता यानी अबू फ़किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद सूरतों की इब्तदाई आयत है। हज़रत यहया बिन यामर रहमतुल्लाह अलैह ये ताबी गुज़रे हैं, फरमाते हैं इससे मुराद फ़राइज़, अवामर व नवाही और हलाल व हराम के अहकामात वाली आयत हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ये भी ताबी गुज़रे हैं कि वो फरमाते हैं कि इन्हें उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि ये तमाम आयात कुतुब साबिक़ा में लिखी हुई हैं। मुक़ातिल बिन सुलेमान बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ये एक सुन्नी मुफस्सिर हैं, फरमाते हैं कि उन्हें उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि क्योंकि तमाम मज़ाहिब इस पर अमल पैरा हैं। अब आइए नाज़रीन हम देखते हैं कि मुतशाबिहात से क्या मुराद है। तशाबहा के मानी हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक दूसरे से मिलता जुलता और मानिंद, और मुतशाबा होना कि उनमें इल्तबास यानी यकसानियत के सबब शुबा हो जाना होने लगे और इम्तियाज़ मुश्किल हो जाए।
मुख्तसर अल्फाज में इसके मानी होते हैं मिलती जुलती चीज़ें जिनमें बाहमी मुशाबहत और मुआफ़क़त हो। तशबीह को इसलिए तशबीह कहते हैं कि इससे एक चीज़ को इससे मिलती जुलती चीज़ के साथ मिसाल देकर समझाया जाता है। अल मुतशाबहा मा अशकलु तफसीरहु अम्मा मिन हैसुल लफ्ज़ औ मिन हैसुल मानी, यानी जिसका मानी और तफसीर किसी लफ्ज़ी या मानवी पेचीदगी की वजह से मुश्किल हो। नाज़रीन, मौलाना हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक मुफस्सिर गुजरे हैं, अपनी तफसीर में लिखते हैं कि आयात मुहकमात के बरअक्स आयात मुतशाबहात मसलन अल्लाह की हस्ती, क़ज़ा व क़दर के मसाइल, जन्नत, दोज़ख, मलाइका वगैरह, यानी मावराए अक्ल हक़ाइक़ जिनकी हकीकत समझने से अक्ल इंसानी कासर हो या उनमें ऐसी तावील की गुंजाइश हो या कम अज़ कम ऐसा अबहाम हो जिससे अवाम को गुमराही में डालना मुमकिन हो। इसीलिए फरमाया गया कि जिनके दिलों में कजी होती है वो आयात मुतशाबहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनके ज़रिए से फितने बर्पा करते हैं। जैसे ईसाई हैं, कुरान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला और नबी कहा है, ये वाज़े और मुहकम बात है, लेकिन ईसाई इसे छोड़कर कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह जो कहा गया है उससे अपने गुमराह कुन अकायद पर गलत इस्तदलाल करते हैं। नाज़रीन, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद मनसूख आयात हैं और वो आयात जो मुक़द्दम व मुअख्खर हों, जिनमें मिसालें और किस्में बयान की गई हैं और जिन पर ईमान लाना ज़रूरी हो और अमल करना ज़रूरी ना हो। हज़रत मुजाहिद बिन जबर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक मुफस्सिर गुजरे हैं, फरमाते हैं कि मुतशाबहात एक दूसरे की तशरीह करती हैं और ये कौल अल्लाह ताला के इस फरमान के किताबन मुतशाबिहन मसानिया, वो किताब जिसकी आयत एक जैसी हैं बार बार दोहराई जाने वाली। ये आयत पारा नंबर 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 23 है। यहाँ मुतशाबा से मुराद वो कलाम है जो एक ही तर्ज पर हो और मसानी से मुराद वो कलाम है जिसमें दो मुतकाबिल चीज़ों का जिक्र हो, जैसे जन्नत व दोज़ख, नेक व बद वगैरह। लेकिन सूरह आल इमरान की मज़कूरा आयत में मुतशाबा से मुराद वो कलाम है जो मुहकम के मुकाबला में हो। इसमें बेहतरीन कौल मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक ताबी गुजरे हैं, उनका वो फरमाते हैं कि आयात मुहकमात रब ताला की हुज्जत और उसके बंदों की हिफाजत हैं। इन्हीं के ज़रिए बातिल कुव्वतों को रद्द किया जा सकता है और इनमें किसी किस्म की तहरीफ व तगय्युर नहीं हो सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुतशाबहात में भी कोई तहरीफ और तावील नहीं हो सकती। इनसे अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को आजमाता है जैसे उन्हें हलाल व हराम के ज़रिए आजमाता है। यानी इन आयात की बातिल और गलत तावील न की जाए और ना ही इनमें किसी किस्म की तहरीफ की जाए। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुतशाबहात यानी वो आयात जिनके मफहूम में इश्तबाह की गुंजाइश है। ज़ाहिर है कि इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई रास्ता तजवीज़ नहीं किया जा सकता जब तक कायनात की हकीकत और उसके आगाज़ व इंजाम और उसमें इंसान की हैसियत और ऐसे ही दूसरे बुनियादी अमूर के मुतल्लक़ कम से कम ज़रूरी मालूमात इंसान को न दी जाएं। और ये भी ज़ाहिर है कि जो चीज़ें इंसान के हवास से मावरा हैं, जो इंसानी इल्म की गिरफ्त में ना कभी आई हैं ना आ सकती हैं, जिनको उसने ना कभी देखा, ना छुआ, ना चखा, उनके लिए इंसानी ज़बान में ना ऐसे अल्फाज मिल सकते हैं जो उन्हीं के लिए वज़ा किए गए हों और ना ऐसे मारूफ असालीब बयान मिल सकते हैं जिनसे हर सामे के जहन में उनकी सही तस्वीर खिंच जाए।
لامحالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ما بعد الطبیعی مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔ ناظرین، تعویل کے لغوی معنی ہے آخری نتیجہ جو کچھ معال کار ہو، کسی شے کی اصل حقیقت یعنی الٹیمیٹ ریالٹی۔ اس معنی کے اعتبار سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرے معنی ہے کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان و توضیح۔ اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کی بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسٹس ریٹائرڈ فرماتے ہیں اپنی کتاب اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہ بعض علماء نے والراسخون کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسرے علماء نے الا اللہ پر وقف کیا ہے اور والراسخون کو مستقل جملہ قرار دیا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اس کو مستقل جملہ قرار دیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نہ جاننے کے باوجود ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جن کو کوئی سمجھ ہی نہ سکتا ہو اور ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ جو علماء الا اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد لیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں کہ متاثرہ اللہ تعالی یعلمہ كقيام الساعة والحروف المقطعة في اوائل السور، جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حرف مقطعات وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، تو اس کا نہایت واضح جواب علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے رتبہ کو پہچانتا ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے، نہ اس علم کی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح طرز عمل پھر کیا ہے؟
मुनाफिकीन और जोहला के बरक्स वर्रासिखून फिल इल्म, लोग मुतशाबहात में उलझने की बजाय मुहकमात पर अमल पैरा होने में ज़ोर देते हैं। मुतशाबहात के मुतल्लक उनका नज़रिया ये है कि इनका सही अदराक मा सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं। उनको उनकी अक्लमंदी का तकाजा है कि जो अल्लाह ताला ने मुहकमात और मुतशाबहात आयात में नाज़िल फरमाया है, बात उनकी समझ में आए या ना आए, वो इस पर दिल से ईमान लाते हैं। यही सही तर्ज अमल है। अपनी हुदूद को तस्लीम करना बड़ी अक्लमंदी का काम है। नाज़रीन, आयात नंबर 8 और 9 में अर्रासिखून फिल इल्म के दुआया कलमात हैं। वो अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं जिनका मकसद हदायत पर कायम रहना है, इसलिए वो दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, ना टेढ़ा कर हमारे कुलूब को बाद इसके कि तूने हमें हदायत अता फरमाई और अपने पास से हमें नसीहत अता फरमा। बेशक तू बहुत ही अता करने वाला है। हदायत का मकसद आखिरत में कामयाबी है। अक्लमंद अपनी मौत को कभी नहीं भूलते, ना वो यौम आखिरत से गाफिल होते हैं। वो इकरार करते हैं कि रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ऐ हमारे रब, बेशक तू तमाम कायनात से तमाम लोगों को एक जगह जमा करने वाला है जिसके वकू में कोई शक नहीं। यकीनन क़यामत आकर रहेगी, ये तेरा वादा है और तू अपने वादे के मुताबिक तू अपने वादे के खिलाफ कतई नहीं करता। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दिल भी उलट पलट हो जाते हैं? फरमाया, हाँ, बनी आदम में से हर इंसान का दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। अगर वो चाहे तो उसे सीधा रखे और अगर चाहे तो उसे टेढ़ा कर दे। हम अपने रब की बारगाह में सवाल करते हैं क्या वो हमारे दिलों को हदायत के बाद टेढ़ा ना करे और वो अपनी जनाब से हमें रहमत अता फरमाए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को तक़वियत अता फरमाने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत कर दे। तो नाज़रीन, ये थी आज की तफसीलात व तशरीहात। अब आइंदा नशिस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।